I'm thankful to Baba Farid Group of Institutions that they have given me a chance to share my views, something related to Sustainable Development Goal, NEP, and I am not expert of Industry 4, tell you very clear. So we will be talking mainly about sustainable goals because these are very, very important nowadays. So we will keep it in discussion mode. बातचीत करेंगे because I may learn many things from you and something I may tell you. So I'll request you all before I start that let me participate, because Einstein had said one thing: a person who is asking a question is fool for 5 minutes, and a person who is not asking a question is fool for whole life. Please ask questions. If I have answer, I will try to answer. If I don't, I will say sorry, I don't know, you find out yourself. So everybody is talking nowadays sustainable development, sustainability, circular economy. These are the buzzwords nowadays in the academic world. I want to know from you what you think, what is sustainable development? क्या होती है ये, क्या किस लिए, क्या मतलब है ये? Everybody is talking sustainable development nowadays. क्या लगता है सर? सर डेवलपमेंट ऐसे करें कि कुछ नुकसान ना हो। डेवलपमेंट ऐसे करें कुछ नुकसान ना हो। बहुत बढ़िया। एनी अदर पार्टिसिपेंट फ्रॉम दैट साइड? सर, लॉन्ग लास्टिंग, यस, लॉन्ग लास्टिंग एंड डज नॉट हार्म द एनवायरनमेंट। डज नॉट हार्म द एनवायरनमेंट। बहुत बढ़िया। एनी अदर, वन मोर पार्टिसिपेंट। सो व्हाट यू थिंक, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? एनी कुछ भी होगा, गलती तो होगा, हमने कौन सा नंबर देना है किसी को, और कुछ गलत ठीक नहीं होता है। एनी पार्टिसिपेंट? सर, using the resources in a way that can long last. Using the resources in a way so they can last longer. Okay sir, this was in 1980 that United Nations made a commission. Name of that commission was Brundtland Commission. Brundtland was the then Norwegian Prime Minister, लेडी थी, नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर थी, उनके अंडर ये कमीशन बना। एंड द कमीशन वाज टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन मैन, इकोनॉमी एंड एनवायरमेंट। And in 1984 they submitted a report. The name of the report is Our Common Future. 1984 में एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं, रिपोर्ट का नाम है आवर कॉमन फ्यूचर। इफ यू आर इंटरेस्टेड, द रिपोर्ट इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, फ्रीली डाउनलोडेबल, एनीबॉडी कैन डाउनलोड इट। एंड इन दैट रिपोर्ट दे हैव डिफाइंड that what is sustainable development, and definition I have given here, that what is sustainable development. What you all said, that is all is correct, that development that meet the needs of the present generation without compromising the ability of the future generations. Basically the report says that you are not the owner of any resource in the world. किसी भी चीज के आप मालिक नहीं हैं, you are just a custodian. अगर मैं इसको और भी देसी भाषा में कहूं तो आप चौकीदार हैं। You have got something from your forefather and you have to pass it to your next generation. That is your duty. And this is very important, that we have to make constant efforts for people, planet, peace and prosperity. 4 वर्ड बोल रहा हूं मैं: people, planet, people, planet, peace and prosperity. These 4 words are very, very important. Now there are 3 core elements of the sustainable development. One of them is economic growth. Already world has grown so much, it is not possible for us to go back to the jungles. पत्ते बांध के रहने लग जाएं और हम फ्रूट खाने लग जाएं, पेड़ों पर रहने लग जाएं, that is not possible. So one of the dimension is economic growth. Second dimension is social inclusion, man. And third is the environmental protection. We need environmental protection also. Today when I am talking to you, 30th conference of parties is going on in Belém in Brazil. You all might be knowing. बेलम एक जगह है, BELEM इन ब्राजील, वहां पे कॉन्फ्रेंस चल रही है, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। एंड एवरी ईयर दे टॉक अबाउट दिस क्लाइमेट चेंज, हाउ टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, हाउ टेम्परेचर इज
डिक्रीजिंग। कुछ सुना होगा आपने इसके बारे में भी। वो कॉन्फ्रेंस आज चल रही है, 10 तारीख से शुरू हुई है, 21 तारीख तक वो चलेगी। So over there also this is the issue, and that I'll talk later on little bit. So these are the three things you all remember: economic, man and environment. And this is the biggest problem of the world, that we have to work constantly to eradicate the poverty. If we don't eradicate poverty, forget peace, forget planet, forget प्रॉस्पेरिटी, कुछ भी नहीं होगा अगर हम इसको इरेडिकेट नहीं करेंगे। So this is a wonderful diagram that is called as temple of sustainable development or temple of sustainability. It has 3 pillars. One pillar is social, one pillar is environment, and one pillar is economic growth. This is just like a building. Now think of a scenario when maximum emphasis is given to the environment and lesser to the social and lesser to the economy. What will happen to this building? Collapse. This building will collapse. Same, let me come, more emphasis to the economy, no to environment, no to social. What will happen? Again collapse. Same is with the, if emphasis is on any one and not on any two, or emphasis is on any two, not on the third one, ultimately this building is going to collapse. So basically what I want to convey to you, we have to give equal importance to all the 3 core elements of the sustainable development. Otherwise this is going to collapse. Many a times you may have seen even in our country different policies. They talk only one aspect. They talk only one aspect and they don't talk about the another aspect. And that's why those policies don't work for very long periods. For example, let us take example of this area. On one side government say that you cannot plant the rice before July. आपको जुलाई में ही राइस को लगाना है। On the other hand they want from us that smoke should not be there. वो तो होगा ना। पहले क्या करते थे हमारे फार्मर्स? They used to plant it in the month of June. अक्टूबर में हार्वेस्ट हो जाता था, मौसम गर्म होता था, धुआं ऊपर इधर उधर निकल जाता था। अभी मौसम ठंडा रहता है। तो what I want to say, we have to consider all the policies when we are doing something. Otherwise situation will be like this building कि एक emphasis pillar पे होगा, 2 पे होगा नहीं, building will collapse. Next. Okay. So I told you that how the concept of sustainable development came. There was a very important conference that was 1992 called as Earth Summit. Many of you may be knowing where it was held. Rio de Janeiro in Brazil. In that conference, whole of the world was divided into 2 groups. One was called as the North Bloc and other Global North, and other one was called as the South Global, North Global, South Global, or Bloc. Some people call it North Bloc, some call it South Bloc. North are the developed nations, South are the underdeveloped nations. There were 4 or 5 important issues which were discussed over there. One of the important issue which was discussed over there for maximum number of days was, North Bloc said, there was a big issue over the resources utilization. North Bloc said we are only the 20% population, so we are not doing any kind of pollution. You understand the concept. On the other hand, South Bloc, underdeveloped countries were saying that yes, we agree we are 80% of the population, but we are using only 20% resources, and these 20% people are using 80% resources. Then how we people are responsible for this? This South Bloc wanted that one line should be written here, that this is the North Bloc which is responsible for this pollution. But I think North Bloc spent billions and billions of dollars, and this line never came up in any of the report. Pehla mudda. Second issue was, Global North wanted that Amazon forests, which are the lungs of the world,
जो अमेज़न के जंगल हैं, they are called as lungs of the earth. They should be considered as global property. Then again South Bloc said, well, these are present in the South Bloc. You create pollution and we maintain the sink. How this is possible? If you really want this, give us money. And none of the country from global north agreed to pay the money. This was the second issue. Third very important issue was the biotechnology. Global north wanted that we should be allowed to research and use all the biodiversity all over the globe. Then South Bloc people said, we have all the biodiversity of the world, you people have biotechnology, you are using our biodiversity, making products, selling them and getting money. Give us this technology or give us a share in the profit. They wanted like that. Then Global Bloc said, sorry, biotechnology is not a free item. Billions and billions of the currency is spent to develop this technology. How it can be given in free to anybody? So these were the three major issues. There were some more issues also, but ultimately this conference was a big failure. Nothing was concluded, but ultimately this document was published. And in this several things were given, that and aim was to eradicate the poverty, that the problem, the root cause of all the problems of the world is poverty. Okay, then in 2000 another kind of agenda came up, that is called as Millennium Development Goals. These were 8 in number, which I have mentioned here. These came in 2000 and the idea was that we will achieve that by 2015. 2015 तक हम इसको अचीव कर लेंगे. But these were never achieved. कभी पूरे नहीं हुए. First goal was to eradicate the extreme hunger and poverty. Second was to achieve the universal primary education, which is very important. Gender equality, that is a very big issue. Then empowering the women, this is a very big issue. Then reduce child mortality. Then improve maternal health, HIV, AIDS, malaria and other diseases. Ensure environmental sustainability and global partnership for the development. These were the ideas which were given in the Millennium Development Goals. As I told you, nothing was achieved. And in 2015 we had another document that is called as Sustainable Development Goals, and the number of the goals was increased from 8 to 17. कि अब हमारे सामने 17 गोल हैं भाई. Number was increased from 8 to 17 and we will achieve them by 2030. This was the idea, and till date progress is very bad. I'll request you go to the website of the United Nations. There is a dedicated website to the Sustainable Development Goals, and you see what were the targets for different countries and what they have achieved in that direction. Again, here those words which I told you: people, planet, peace, property, and one more word was added to it: partnership. Because sustainable development goals cannot be achieved without partnership. Partnership is very, very important, and target is 2030. Friends, these are the 17 goals. अब यहाँ हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे. फर्स्ट वन इज दी नो पॉवर्टी. वी विल एरेडिकेट ऑल दी पॉवर्टी फ्रॉम दी वर्ल्ड. पूरी अपनी कॉपी पे लिख लें, फिर हम कुछ करेंगे ना थोड़ा. फर्स्ट वन इज नो पॉवर्टी. सेकेंड इज जीरो हंगर. नो हंगर, खत्म कर देंगे हंगर. थर्ड इज गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग. फोर्थ इज क्वालिटी एजुकेशन. Today you are sitting here, this is also a part of the government of India plan to achieve the SDG 4. Remember it, today AICT has given grant for this, yes or not? Because they want to achieve the
this goal, that is quality education. What is NEP? That is for what? Again, to achieving the sustainable development goal. Sarv Shiksha Abhiyan, started by Government of India. What is that? That is also part of quality education. Midday meal, what is that? That is also part of sustainable development. हम देखते हैं whatever we are doing in this world today, that all is part of one or the other sustainable development goal. Fifth one is the gender equality, which is very, very important. In 1972, when first Earth Conference was held, Indira Gandhi participated on behalf of India. And one line of her lecture was that I am coming from a country where 50% hands don't know what to do. उसकी एक लाइन है बड़ी फेमस, that I am coming from a country where 50% hands don't know what to do. When she was talking this, she was talking about our women. कि उन्हें पता ही नहीं है जिंदगी में करना ही क्या है. This is the situation. Gender equality. Then sixth, clean water and sanitation, very important. Affordable and clean energy. I think energy is very, very important because the consumption of energy is directly proportional to the degree of development. Clean energy and affordable energy, 7 number. 8 number, decent work and economic growth we require. 9th, infrastructure, innovation and industry. जो आप इंडस्ट्री 4 की बात कर रहे हैं, बिकॉज नाउ इज नॉट द इरा ऑफ हार्ड वर्क, नाउ इज द इरा ऑफ स्मार्ट वर्क, एंड दैट स्मार्ट वर्क इज नथिंग बट इंडस्ट्री 4. ओके, देन 10, रिड्यूस इनइक्वालिटीज. 11th, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज. 11th. 12th, responsible consumption and production. This is very, very important. Very important. Okay, whatever we produce, whatever consume, we should be very responsible for this. Even the Government of India has issued a notification to all the educational institutes, whatever you do, keep into your mind responsible consumption and production. Consumption particularly they were more interested. भाई चाहिए मुझे 10 ये प्रोजेक्टर, आप 50 खरीद लो. Is this responsible or irresponsible? This is completely irresponsible. Then 13, climate action, carbon dioxide is increasing. 14th, life below water, which is very, very important. 15, life on the land, trees, etc. 16, peace, justice and strong institutions. 17, partnership for the globe. पार्टनरशिप द ग्लोब. एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं पहले हम. सुबह आप में से कुछ लोग मॉर्निंग वॉक पे गए होंगे. समवन मे हैव गॉन फॉर मॉर्निंग वॉक. किस लगता है किस एसडीजी के अंडर आएगा वो? गुड हेल्थ, दैट इज एसडीजी नंबर 3, है ना. तो कुछ ने योगा भी किया होगा, कुछ किया होगा, दैट विल कम अंडर 3. सम ऑफ यू माइट हैव टेकन योर क्लास, कुछ क्लास भी लेके आए होंगे, उसके लिए आपने प्रिपरेशन किया होगा, वो किसके अंडर आएगा? ओके. किसी एक ने सोचा होगा चलो यार आज पैदल चलते हैं, आज कोई व्हीकल लेके नहीं जाते, हम साइकिल से जाएंगे. क्या लगता है किस एसडीजी में आएगा? हाँ जी, नंबर 13 के अंडर आएगा. मेरे पास कुछ स्टेटमेंट हैं ऐसे. जैसे पहली स्टेटमेंट है इसमें, ए विलेज हैज नो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. किस एसडीजी से संबंधित लगता है आपको? दिस इज क्लियरली इंडिकेटिंग नंबर 6. एक और है, चिल्ड्रन आर ड्रॉपिंग आउट ऑफ द स्कूल. किस एसडीजी से संबंधित लगता है ये? नंबर 4 से ये संबंधित है हमारा. There is a community and that had switched to solar. अच्छा, there may be more than one SDG associated with one statement. There is a community that has shifted to solar powered street lights. कौन सी लगती है ये एसडीजी? हाँ जी, 7 नंबर प्लस एक और आएगा इसके साथ.
क्लाइमेट एक्शन नंबर 13, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन नहीं है बिजली जो वो यूज कर रहे हैं. सो देयर आर 2 SDGs. नेक्स्ट प्लीज. A company pay women less than men for the same work. Inequalities. Gender 5 भी आएगा, 10 भी आएगा. हाँ जी. Reduce inequality 5 भी और 10 भी. इसका मतलब डिस्क्रिमिनेशन है वहां. नेक्स्ट स्टेटमेंट. A school start a recycling program for plastic waste. क्लाइमेट एक्शन. One may be climate action. बहुत बढ़िया. अदर किस में डालोगे सर इसको? रिसाइकलिंग अगर मैं कर रहा हूं तो थोड़ा और सोचो. 13 तो बिल्कुल ठीक है. 12 सस्टेनेबल कंजम्पशन. सस्टेनेबल, हाँ, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, वो भी आ जाएगा. नेक्स्ट स्टेटमेंट. मैनी फैमिलीज कैन नॉट अफोर्ड न्यूट्रिशियस फूड. पहले में भी आ जाएगा, दूसरे में भी आ जाएगा. पैसा भी नहीं है, भूख भी है, दोनों. हाँ जी. हाँ, 3 में भी आ सकता है. हाँ, पर 1 और 2 तो पक्का आएंगे इस स्टेटमेंट में. नेक्स्ट प्लीज. ये इस पे आते हैं. चलो कोई भी. ए हॉस्पिटल lacks doctors and proper medical equipment. बिल्कुल सही. 3 नंबर में आएगा. गर्ल्स इन रूरल एरिया आर नॉट एबल टू अटेंड स्कूल. सर थोड़ा सा इसमें, एक तो ये 5 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है. इनइक्वलिटी है ना स्टेटमेंट में दिख रही है. नेक्स्ट 2-3 और लेते हैं स्टेटमेंट. एक फार्मर को लेके कोई स्टेटमेंट थी. नीचे चलते हैं थोड़ा. फार्मर्स आर ट्रेन्ड इन सस्टेनेबल फार्मिंग मेथड्स. ओके. इलेवेंथ क्या है भला? सिटी में तो है नहीं मेरा फार्मर. और कुछ और नीचे जाओ ना, उससे नीचे. पार्टनरशिप. दैट विल कम फॉर पार्टनरशिप. 17 नंबर इसके अंदर आ सकता है, 16 नंबर भी इसके अंदर आ सकता है. और देखते हैं सर, कोई भी आप मुझे बोलो, 2-3 और डिस्कस करते हैं जो अच्छी लगे. हाँ. ए विलेज इंस्टॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम. 11 सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटी. ओके. थोड़ा वाटर से भी जोड़ सकते हैं शायद हम इसे. ना 6 नंबर वो समुद्र की बात है वहां, है ना जी. हाँ हाँ, थोड़ा सा नेक्स्ट, थोड़ा और ले लो लास्ट में. अच्छा ये क्या है? किसी ए सिटी लॉन्चेज ए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी. ओके. सस्टेनेबल सिटीज आ जाएगा 12 नंबर. क्लाइमेट एक्शन आ जाएगा 13 नंबर. 9 भी आ जाएगा. इनोवेशन. ओके. नेक्स्ट एक और भी आ जाएगा इसमें, 7 नंबर. अफोर्डेबल एंड कुछ. तो फ्रेंड्स इस तरह से दिस इज माय रिक्वेस्ट, व्हेन यू गो बैक ask your students to correlate whatever they are doing or whatever they find around them with some SDG. तो उनको थोड़ा इससे बेटर आइडिया आएगा. नेक्स्ट एक छोटी सी एक्सरसाइज और करते हैं, छोटी सी. यू पीपल राइट 2-3 रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स around you and correlate them with some of the SDG. इसको बंद करते हैं सर, इससे ज्यादा नहीं दिखाएंगे इसको. कोई भी 2-3 आपको अपने इर्द गिर्द लगती हैं प्रॉब्लम, और किस SDG से वो जुड़ी हुई लगती हैं आपको. सर कुछ आपने जैसे बताएंगे. मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब से हूँ. हाँ, तो हमारी तो बहुत समस्याएं हैं. लाइक जो एयर पॉल्यूशन होता है
एयर पोल्यूशन इन द विसिनिटी, नॉट बिकॉज ऑफ CUPP, वहाँ पे बता रहा हूँ। इन द विसिनिटी। तो किस SDG से जोड़ते हैं आप उसको? हेल्थ वेल-बीइंग वन, दैट कैन बी कोरिलेटेड विद दैट। ओके, आपने कुछ लिखा? हाँ जी, आप आराम में, आपके पास। सर मैं विलेज से आती हूँ, तो बहुत बढ़िया। पे वाटर की प्रॉब्लम, मतलब वाटर की क्लीनलीनेस की। वाटर की क्लीनलीनेस एक इशू है, तो किस SDG से जुड़ती है ये बात? सर SDG 6। से जुड़ती है। आप कुछ कहना चाह रहे थे? वाटर प्रॉब्लम। Water problem, SDG 6. So anyone want to say that this is the problem other than these people and this is with this SDG particularly associated? एयर पोल्यूशन हो रहा है सर। एयर पोल्यूशन उन्होंने हाँ बोला 7 नंबर से बड़ा सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। 7 नंबर ही नहीं है, ये 13 से भी जुड़ा हुआ है। हाँ जी, फूड वेस्टेज बहुत बड़ा 12 नंबर में आएगा। सस्टेनेबल रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, बहुत बड़ा इशू है आज की डेट में फूड वेस्ट। रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन में जैसे इन पंजाब मोस्टली डॉरी सिस्टम है, शो ऑफ है, बहुत सारे खर्चे हैं पैलेस में, काफ़ी सारी वेस्टेज है, जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसके अंदर सारे के सारे इश्यूज आते हैं। पॉवर्टी है, इससे कर्जा है लोगों के ऊपर, बिल्कुल है। इफेक्ट हो रही है, ये सबसे बड़ा इशू है रीसेट इन दीज डेज। पॉवर्टी तो आप जोड़ लेंगे कि ये इस SDG से आती है। सो आई थिंक नाउ यू कैन कोरिलेट। मैं जो एक बात हमेशा कहता हूँ व्हेन आई टॉक अबाउट SDG, व्हेन वी वेक अप इन द मॉर्निंग, every activity is related with one or the other SDG, and till in the night we sleep. If we don't sleep on time, that is also related with some SDG. कौन सा? 3 नंबर से जुड़ा हुआ है। तो तब से लेकर तब तक our every activity is with some SDG. So my request, when you go back, tell your student about SDG. Okay, now whether we have achieved the SDGs or not, ये पूरे हुए या नहीं, बिकॉज डिफरेंट कंट्रीज हैव बीन गिवन डिफरेंट टारगेट्स, उसके लिए देयर आर 169 टारगेट्स। कुछ एक की मैं बात करूंगा। 159 टारगेट हैं कि 10 टारगेट 1 नंबर के हैं, 4 टारगेट इसके हैं, 6 अगर जैसे कि दैट अगर आप NEP देखेंगे उसमें ये है ना कि ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो विल बी इंक्रीज टू 50% बाय 2035। This is there. So that is one of the target that जो हम ये कह रहे हैं कि let everybody get elementary education over there. तो कुछ उसमें एज का भी इशू है। Earlier this starts at 6, now it is starting from 3. स्कूलिंग 3 से शुरू करेंगे अब हम। तो ये टारगेट्स हैं अलग अलग तरह के। तो I think now you are very clear about the SDGs. Next please. Yes. So थोड़ा brief अगर मैं करूं, according this is the department in UN that is taking care of SDG, Division of Sustainable Development Goals is there. You put in Google, you will get its website. And according to them, universality is very very important. जब मैं छोटा था दीवारों पे मैं एक लिखा देखता था पोलियो के लिए, एक भी बच्चा छूट गया सुरक्षा चक्कर टूट गया। सेम इज अप्लीकेबल हियर, कोई भी नहीं छूटना चाहिए। यूनिवर्सलिटी एंड नो वन लिविंग बिहाइंड, वी ऑल हैव टू मूव टुगेदर। देन इंटरकनेक्टेडनेस, we all have to interconnect with each other. There is no scope for indivisibility कि मैं अकेला कुछ कर लूंगा। There is no scope for this. We all have to do. भाई हम सारे मिलकर 10 लीटर पानी बचाते हैं और एक हमारे में से 10 लीटर बिखरा के आ जाता है, तो effort is just waste or not? So that we have to. Then inclusiveness, this word is very very important. I think this is appearing a number of time in NEP also. For everyone we have to. Then multi-stakeholder partnership. Without partnership we are not going to achieve this all. Next please. Yes, this 5 P's are very important. I am talking a number of time about these P's. People, prosperity, peace, partnership and planet. Next please. Yes, same चीज है ये। हाँ, now we have 5 P's. See, now we have 5 P's: people, planet, prosperity, peace, partnership. 5 तो ये हो गए। 3 are the core principles
environment, social and economic, and 17 are SDGs. So certainly more than one SDG is for 5 P's, more than one SDG is with same these core principles. So कौन कौन सा किसके साथ है, that here I have given here. 5P में अगर मैं बात करूं people की, तो SDG 1 is for people. कौन से वाला है पहला? Poverty. Second one is for people. Third one is people. Fourth one is people. Fifth one people, and sixth one is also for people. ये तो बड़ा क्लियर है. If I talk about prosperity, prosperity में मेरा आएगा 7 नंबर climate action, 8 नंबर इकोनॉमिक ग्रोथ, 9 नंबर इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन, 10 नंबर गवर्नमेंट नाउ डेज टॉकिंग ए लॉट, पेटेंट करो, ये करो, वो करो, करती है ना सारा दिन बात. दैट इज फॉर SDG 9 की बात वो करती है. सिमिलरली प्लेनेट में अगर मैं बात करूं तो 11 नंबर सस्टेनेबल सिटीज, 12 नंबर सस्टेनेबल कंजम्पशन, 13 क्लाइमेट एक्शन सबको मिलके करना है, 14 लाइफ बिलो वाटर, 15 लाइफ ऑन द लैंड. पीस के लिए 16 नंबर, जिसमें जस्टिस की हम बात करते हैं, पीस की बात करते हैं, इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं. पार्टनरशिप के लिए तो एक पूरा डेडिकेटेड है नंबर 70. सिमिलरली यू कैन कोरिलेट देम विद दीज 3 जो सेक्टर हैं, यू कैन कोरिलेट. नेक्स्ट प्लीज. when I was preparing this PPT, I came across this research paper. उसने एक ना ये मॉडल बनाया है, that is called as wedding cake model of SDGs. He is calling it wedding cake model of SDG. At the top is number 17, that is पार्टनरशिप. और फिर इसने ये बताया कौन कौन से SDG किसके लिए हैं. बायोस्फीयर यानी एनवायरनमेंट के लिए इसने बताया 6 नंबर, 13 नंबर, 15 नंबर, 14 नंबर. इधर उधर हो सकते हैं थोड़े बहुत, सबका अपना अपना सोचने का तरीका है. सिमिलरली ये जो 4, 5 ये जो दिए हैं इसने 8 फॉर सोसाइटी और 4 दिए हैं इसने इकोनॉमी के लिए. प्लीज आप इसको जरूर पढ़िएगा, वेडिंग केक मॉडल ऑफ SDGs. Now, as I was talking to you, the most important thing is how we are going to measure. इंडिया अगर कहीं खड़ा होकर कह दे बस हमारा तो सारा पानी साफ हो गया, हमने तो कमाल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कह सकते हैं ना हम. How that is going to be measured? That will be measured in the terms of certain targets, and for each target there are certain indicators. समझ रहे हो ना, ये टारगेट है, हमने सर्व शिक्षा अभियान है, तो उसका कोई तो इंडिकेटर होगा ना जिससे पता लगेगा वेदर ऑल द किड्स आर गोइंग टू द स्कूल और नॉट. तो ये मैंने जस्ट एक वाटर के आपको दिखाए हैं यहाँ. जैसे एजुकेशन पे चलते हैं. हाँ, सो यहाँ के बाद मैं एजुकेशन की बात करूंगा अब सिर्फ. फ्रॉम माई साइड आई एम नॉट गोइंग टू टॉक नाउ अबाउट SDG. तो SDG 4 जो है उसके 10 टारगेट हैं. देयर आर 10 टारगेट. जैसे फर्स्ट टारगेट है फ्री प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, सुना होगा आपने, गवर्नमेंट इज टॉकिंग ए लॉट अबाउट दिस फ्री. सेकेंड टारगेट है इक्वल एक्सेस क्वालिटी प्री प्राइमरी एजुकेशन, एवरीबॉडी, गर्ल्स बॉयज एंड दैट ऑल, सभी के लिए. देन इक्वल एक्सेस टू अफोर्डेबल टेक्निकल वोकेशनल एंड हायर एजुकेशन. NEP इज टॉकिंग ए लॉट अबाउट वोकेशनल. कह रहे हैं ना कि 8वीं 7वीं से ही शुरू कर देंगे जी हम तो वोकेशनल. सो दैट इज टू अचीव द टारगेट 4.3 मीन चौथे SDG का टारगेट नंबर 3. देन फोर्थ, इंक्रीज द नंबर ऑफ पीपल विद स्किल्स. अभी अपनी यहां से बठिंडा जाए ना, मान लो एक आदमी की टांग टूट जाए और एक मेज की टांग टूट जाए. आदमी की टांग ठीक करने वाले यहां से लेके आदेश तक कम से कम भी 30-40 होंगे. मेज की टांग ठीक करने वाले कोई बता सकता है मुझे कितने होंगे? मानेंगे ना आप ये मेरी बात? समवेयर द स्किल्स आर मिसिंग. मैं ग्रेजुएट हो जाता हूँ, PhD हो जाता हूँ, बट आई डोंट. कुछ कहना चाह रहे क्या आप? नहीं. सो मैं ग्रेजुएट भी हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, बट आई डोंट हैव एनी स्किल. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट स्किल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू गो बाय इंडियन माइथोलॉजी, जितने भी करैक्टर है सब में कोई ना कोई एक स्किल तो था या नहीं रहा होगा. कर्ण की अगर हम बात करें
पढ़े ही होगे महाभारत, सुनते हैं जैसा। कर्ण का क्या था लाइफ स्किल, क्या लगता है आपको, क्या उसका एक स्किल था खास? सर वो डोनेशन था ना उसका, कि मरते मरते भी वो डोनेट करेगा। एनी अदर कैरेक्टर, रामचंद्र जी का क्या लगता है आपको, कोई एक लाइफ स्किल रहा होगा? न्याय का। न्याय। एनीवन एल्स? मर्यादा। ओके। रामचंद्र जी का उन्होंने तो कभी भी नहीं किया सेक्रीफाइस सर। He left for other people. ओके चलो मान लेते हैं सेक्रीफाइस। एक लाइन है बड़ी पॉपुलर उनके बारे में, जो उनका लाइफ स्किल है, बहुत बार बोलते हैं, हम सारे बोलते हैं। प्राण जाए पर वचन न रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। दिस इज हिज लाइफ स्किल और नॉट? हनुमान जी का भी कोई लाइफ स्किल होगा? हाँ जी सर, एम्बेसडर। हाँ, डिवोशन भी है, एम्बेसडर कृष्ण जी का भी कोई ना कोई लाइफ स्किल होगा। सो व्हाट आई वांट टू से, सिमिलरली वी शुड टेक सम एजुकेशन। अब अगर हमारे गुरु जनों की हम बात करें, सभी गुरुओं की, सबका कुछ ना कुछ एक स्किल तो जरूर होगा, और हम उसको किसी तरह अपने जीवन में उसको भी अपनाएं, और प्रेजेंट नीड के अनुसार भी किसी ना किसी स्किल को हम अपने अंदर डिवेलप करें। एज लॉन्ग एज वी डोंट हैव ए स्किल। किस सब्जेक्ट में कर रहे हैं आप पीएचडी? किस में? डिपार्टमेंट बता दो ना। साइबर सिक्योरिटी। अब ये पास भी कर ले, सब कुछ कर ले, और अगर हम इसे कहें कि भाई बाबा फरीद इंस्टीट्यूट की वेबसाइट को सिक्योर कैसे करेगा, और ये कहते सर मैंने तो पेपर पास कर लिया, सिक्योर नहीं मैं कर सकता। अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट, दिस इज द सिचुएशन ऑफ माय स्टूडेंट्स ऑल ओवर द कंट्री। है ये हमारी स्थिति या नहीं होगी सर? मानोगे मेरी ये बात ना, कि भाई फायरवॉल को भी मेरे बच्चे वीपीएन लगा के पास करके कर रहे हैं धंधा। हाउ यू कैन स्टॉप देम? सो सर्टेनली वी हैव टू लर्न सर्टेन स्किल्स। गूगल पे डालिएगा जॉब्स विदाउट एनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, 15 जॉब आती हैं बड़ी बड़ी, बट दे आर नॉट बेस्ड ऑन एकेडमिक क्वालिफिकेशन, दे आर बेस्ड ऑन स्किल्स। जोमेटो सुना होगा, यहीं का तो लड़का है, पास ही आपको 10-20 किलोमीटर होगा जी। तो वी हैव टू डेवलप सर्टेन लाइफ skills, and NEP is talking a lot about eliminate all kind of discrimination. We have so many discrimination, कास्ट की, इसकी, उसकी, 70 तरह की हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन है, सबको हमें खत्म करना है। देन यूनिवर्सल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। बहुत बार हम अखबार में पढ़ते हैं द स्टूडेंट हैज पास द 10th क्लास बट दे डोंट हैव द इवन 4th क्लास न्यूमरेसी एंड लिटरेसी। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के बारे में बार बार आता है, स्टूडेंट्स आर ग्रेजुएट बट दे डोंट हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स। इस पे हमें बहुत सख्त काम करने की जरूरत है। देन ग्लोबल सिटीजनशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन इंक्लूसिवनेस, देन एक्सपैंड ऑन हायर एजुकेशन। कहाँ प्रॉब्लम है हमारे साथ? इफ यू गो टू सम डेवलप्ड कंट्री, वहां यूनिवर्सिटी में जो स्टार्टअप होंगे ना, आउट ऑफ 10 7 स्टार्टअप्स आर बेस्ड ऑन रिसर्च। अगर आप किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में आप चले जाइएगा, 7 आर बेस्ड ऑन रिसर्च। मेरे यहाँ कौन सा आ रहा है? कोई है मेरा स्टार्टअप जो रिसर्च पे बेस्ड हो? कुछ भी नहीं आ रहा। ड्रीम 11, यम्मी, कौन सा है वो, रमी 11 है ना, आते हैं ना ऐसे से, 1 रुपए से खेले, 3 रुपए से खेले, 5 रुपए से खेले। नन ऑफ द स्टार्टअप इज बेस्ड अपॉन दी रिसर्च। जब तक रिसर्च पे बेस्ड नहीं होंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। रिसेंटली आई वाज रीडिंग ए आर्टिकल दैट इंडिया दिस ईयर इज हैविंग 1 मिलियन patents. India is having 1 million patents. Patents are so big and innovation is this much in those patents, because 80 or 90% of them are design patents, to whom I don't call patents. आप समझ रहे हो? As long as there is no utility patent, there is no meaning of anything. I was for some time I was faculty in the EPFL Lausanne, that is in Switzerland. बड़ा सिस्टम बहुत क्लियर है। Whenever any PhD is submitted in the thesis, PhD सबमिट हो गया ना, जैसे आप लोग PhD करेंगे, तो अगर मैं आपसे पूछूं that you have spent 4-5 youthful years of your life for that PhD, जिंदगी के सबसे बेहतरीन साल लगाए उस PhD पे, and by spending 4-5 years we have generated 40-50 tables, figures, diagrams, something like that.
मैं अगला आपसे अगर एक सवाल करूं कि what to do of that for which you have spent about 5% of your life and 100% of your youthful years, क्या काम आएगा वो? आपको क्या लगता है, क्या करोगे आप उसका? एनीवन, सिंपल डिस्कशन। आपको क्या लगता है कि पीएचडी करेंगे हम, उसका मैं क्या करूंगा उस डाटा का? Good job. Job is my priority. Okay, perfect. Next, anyone? सर बड़ा ओपन डिस्कशन है। Anyone? Contribution to society. Continuation to Contribution to society. how that tables, how that data is going to contribute to the society. This is what I want to know. Qualified for postdoc. Qualify for postdoc, Higher education. हायर एजुकेशन। पीएचडी के बाद कुछ नहीं बचा सर। बिजनेस करना चाहेंगे सर उसको। आप बिजनेस करना चाहेंगे बेस्ड अपॉन योर, ये पोस्ट डॉक कर चुकी है इसलिए कह रहे हैं। हाँ नहीं वो ठीक है, उन्हें आइडिया होगा फिर। एनीवन एल्स? वेरी वेरी सीरियस क्वेश्चन। वेरी, इधर से कोई बताएंगे सर क्या करना चाहिए? कितने लोग कर रहे हैं अभी पीएचडी आप में से? अच्छा 2 कर रहे हैं। कितने कर चुके? तो बहुत सारे लोग हैं मेरे पास। तो क्या लगता है आपको, क्या किया? देखिए, मैं जब बहुत लोगों से सवाल पूछता हूं, एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन का एक आंसर आता है मेरे पास, पब्लिकेशंस। मेरे पास एक बड़ा कॉमन सा आंसर आता है, पब्लिकेशन। ठीक भी है, हमारा जो प्रेजेंट सिस्टम है उसके अंदर तो publication is the most important, but I take back you to the EPFL Lausanne. Whenever any PhD is submitted there is a committee of very senior, very learned professor. That thesis is given to the professors, and then the professors have a very serious look on the data. If they find there is something commercializable in this thesis, जो सर अभी बात कर रहे थे, if there is something commercializable in this thesis, they immediately call the boy. They ask the boy, you start your startup in our incubation center and we are giving you $1 million grant, and lieu of that we have some equity in your startup. बदले में कुछ ना कुछ अपनी हिस्सेदारी वो रखते हैं। If the committee finds there is nothing that can be commercialized immediately, but there is something that can be patented, and 10 years down the line, 20 years down the line, that patent can be sold and from that money can be earned, they immediately call their patent lawyer and they say, okay, file this patent. If the committee finds there is nothing commercializable, nothing patentable, they return that, thank you very much, take it back and publish it. So what I want you to convey is, what is our first priority? Maximum क्या है हमारी priority? Publication. And what is their last priority? Publication. So friends, we have to change our total scenario. जो आप ये इंडस्ट्री 4 की बात कर रहे हैं ना, जितना भी इंडस्ट्री 4 ये तब तक नहीं आएगा जब तक मेरी थीसिस में कुछ भी कमर्शियलाइजेबल नहीं होगा, पेटेंटेबल कुछ भी नहीं होगा। कल मैं एक पढ़ रहा था कि नहीं संधू साहब के बारे में, गुरतेज संधू प्रोबेबली इज द नेम ऑफ द बॉय तो मैं गलत बोल रहा हूँ। ही इज सरपास्ड द पेटेंट्स ऑफ द Edison. He is having 1095, I think, patents, 1093 patents. Edison, and this person is having 1300 or something like patents. But when I looked on the list of the patents now, most of the patents are just this like that kind of. पढ़िएगा आप, गुरतेज संधू is probably is the name of the person. पढ़ा भी होगा आपने थोड़ा, है ना? जरूर उसकी बात कीजिएगा कल सुबह। किसी को सर असाइनमेंट देना, किसी को संधू साहब के पेटेंट बताएंगे और आइंस्टाइन के बताएंगे। So let we learn about our people. He is not in India. Okay, so we have to spend for education, we have to give our scholarship and that all. जो आजकल ये इतनी मिल रही है scholarship, that is only because of this. Then yes, this all cannot be attained as long as we don't have the qualified teachers. We need qualified teachers also, and this program is also, I think, a part of that we have to update our teachers. Okay, next sir.
Yes. So these are the total indicator. What I told you, those were the targets of SDG 4, and these 11 are the indicators. Just we will have a look. That minimum proficiency in reading and writing and mathematics numeracy की बात है. Childhood development rate, then some learning, so then ICT skill. These are very very important nowadays. Whenever I take any interview anywhere, I ask person one very simple question. कि when did you join? When you came for the first time in job? मान लो प्रोफेसर का ही इंटरव्यू है, तो मेरा एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन होता है सर उसको. किसी ने कहा कि मैं 2009 में ज्वाइन किया, उनका नाम गुप्ता जी है, कि गुप्ता थोरेटिकल नेम, कि गुप्ता जी एट द रेट ऑफ 2009 एंड गुप्ता जी एट द रेट ऑफ 2025, हाउ मच गुप्ता जी हैज इवॉल्व्ड एज ए टीचर ना. खाली 3 पब्लिकेशन या 5 पब्लिकेशन पे तो मैं आपको प्रोफेसर नहीं बना सकता. आई नीड सम इवोल्यूशन विच यू हैव डन इन पेडागोजी, इन ICT स्किल्स, वोकेशनल एंड दैट ऑल. And I think I hardly found answer from any professor till date. सब मेरा मुंह देखने लग जाते हैं कि ये क्या क्वेश्चन है. So please when you go back from here, जरूर अपना एक लिखें कि मैंने इस साल पोस्ट ग्रेजुएट ज्वाइन किया था और आज तक मैं कितना इवॉल्व हुआ हूं. और कल सर ये असाइनमेंट देना, कल कोई 2 लोग बताएंगे कि हाउ मच आई हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम देयर टू टुडे. ओके, देन ICT स्किल, देन द जेंडर वेल्थ, ये हो गया. देन अडल्ट लिटरेसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इंदिरा गांधी का वो स्टेटमेंट याद रखिएगा, आई एम कमिंग फ्रॉम ए कंट्री वेयर 50% पीपल डोंट नो what to do. Then scholarships we have to develop and trained teacher. आपने देखा होगा, आपके यहाँ भी होगा, B.Ed का पूरा फॉर्मेट चेंज हो गया है. कंप्लीटली फॉर्मेट है चेंज ना. नाउ इट इज आई थिंक BA प्लस B.Ed समथिंग लाइक दैट इज द कोर्स. कुछ चेंज हो गया पूरी तरह. अगर आप देखेंगे BA B.Ed हो गया या BSc B.Ed हो गया, समथिंग लाइक दैट दे आर डूइंग. तो नेक्स्ट प्लीज. ओके, ये थोड़ा सा इंडिया का स्टैटिस्टिक्स मैंने लेने का कोशिश किया है. प्रेजेंटली हमारा अडल्ट लिटरेसी रेट जो है कंट्री का, लिटरेसी रेट ओनली रीड एंड राइट 78%, रूरल एरिया में 68-69%, और जो मेरे डिसेबल्ड पीपल हैं भाई हैं उनका 55%. यस, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, दिव्यांग बच्चे, ओनली 34% ऑफ देम आर गोइंग टू स्कूल. अदरवाइज देखो ये भी एक बहुत बड़ी लायबिलिटी है समाज में, इनको भी हमें कैपेबल बनाना पड़ेगा. यस, देन यस, एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन इज ओनली 25%. दिस इज देयर. एंड ये अगर मैं यूथ लिटरेसी की बात करूं, फीमेल 92%, मेल 94%, स्टिल देयर इज ए गैप ऑफ 2%. दिस वी हैव टू फिल समहाउ. नेक्स्ट प्लीज. Okay, so now from that I am coming to the NEP. I want to know from you. बंद कर देते हैं सर इसको 1 मिनट के लिए, पिछली स्लाइड ले आओ. हाँ, what do you think? What is NEP? आपके कॉलेज में हजारों लेक्चर हुए होंगे, हजारों बातें हुई होंगी. इसका विजन क्या है NEP 2020 का? हुई होंगी ना बहुत, आपने अटेंड भी की होंगी वर्कशॉप ये वो. अगर 2 लाइनों में बोलना हो, what is the vision of NEP 2020? Overall country development. Overall country development, perfect. Anyone sir? Provide quality education. To provide quality education, बहुत बढ़िया. इधर से कोई भी डिस्कशन है इसमें, कोई ऐसी घर में भी तो करते हो ना टीवी के आगे बैठ के डिस्कशन, वही है ये भी. Anyone please? Skill based education. Skill based education, okay. Affordable education. Affordable education, बहुत बढ़िया. Anyone? The vision of NEP is very very simple. A education system that is based on Indian ethos, rooted in Indian ethos, rooted in Indian ethos for transforming India, and that is भारत, ये उनका अपना पॉलिटिकल वर्ड है. Sustainably into a, ये भी छोड़ देते हैं, by providing quality education and making India a knowledge superpower. तो 4 वर्ड हैं टोटल मिला जुला के. एजुकेशन सिस्टम that is rooted in
इंडियन इथोस यानी हमारी अपनी वैल्यू, एंड टू मेक इक्विटेबल एंड वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी, ऐसा सिस्टम जो इंडियन इथोस पे बेस्ड हो, सोसाइटी को मेरी को नॉलेजेबल बनाए, वाइब्रेंट बनाए थ्रू हाई क्वालिटी एजुकेशन, एंड टू मेक इंडिया ए ग्लोबल सुपर पावर। इसको और भी अगर मैं छोटा करूं, एजुकेशन सिस्टम रूटेड इन इंडियन इथोस टू मेक द इंडिया ग्लोबल एजुकेशन, बाकी और कोई सी नहीं, ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। आई थिंक दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ द NEP 2020। नेक्स्ट प्लीज। यस, बहुत पढ़ा होगा इसका आपने। देयर इज लॉट इज गिवन अबाउट स्कूल एजुकेशन, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक देयर। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स which are the goals and missions of higher education in NEP 2020। सबसे पहला तो यही है कि इंक्रीज दी एनरोलमेंट रेशियो बाय 50%। ये मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि हाउ वी आर गोइंग टू एम्प्लॉय दीज 50% हायर एजुकेटेड पीपल। अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट और नॉट? अभी जैसे कंसेप्ट आया वहां हब एंड पेयर इंस्टीट्यूट्स का, our university has got some 14 crore or something like that money has been given. Our main hub is JNU that has been given 100 crore. 6 universities are attached with that, each has got some 14-15 crore, तो we are one of them। तो क्या करेंगे वो तो मुझे नहीं पता है अभी, बट पैसा जरूर आपको मिल गया है, तो फ्यूचर में आप जरूर, कंप्यूटर वालों को बहुत पैसा मिला है बिकॉज रीजन है उसका, एवरीबॉडी इज टॉकिंग AI नाउअडेज। कुछ भी नहीं है AI के बिना, बाकी मेरी अभी तक समझ नहीं आया व्हाट इज दिस AI, वेदर चैट GPT इज AI, वेदर परप्लेक्सिटी इज AI, क्या है ये AI? बड़ा समझने की ये मेरा ख्याल बातचीत है। आपने जरूर यहाँ कुछ ना कुछ लेक्चर रखे होंगे AI पे, तो कुछ भी कर लो आप, एवरीवेयर नाउअडेज AI। and UNESCO has in 2023 they have published the guidelines AI for academic institutions, कि वहां पे किस तरह से यूज हो AI का, बिकॉज वो बड़ा क्लियर कहता है डॉक्यूमेंट, यूज AI एज यूर सर्वेंट, एज यूर एजेंट, नॉट एज यूर master. I have seen recently even in my university the people, those were not able to write even the 2 lines in English, nowadays writing big paragraph in wonderful, very flowery English. Everywhere, perfect. So this is there, so don't make it your master, think yourself, and then you can use it for grammar, punctuation and that all, but not as my master, as my servant। Yes or not? कोड भी इसी से लिखने लगे हैं लोग आजकल कंप्यूटर के, मुझे पता लगा है कि कोड भी लिख के दे रहा है सबको। तो कोडर्स जॉब इज इन डेंजर नाउअडेज, खतरे में है बड़ी भारी। सो फ्रेंड्स, अगेन whatever field you are working, acquire AI skills, otherwise we are going to be outdated। मेरा तो चल जाएगा, आप लोग अपना देख लो कैसे करोगे। ओके, सो देन इंटरनेशनलाइजेशन पे भी हम बात करेंगे। देन यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। जो मैं बात कर रहा था, एट द रेट ऑफ 2009 एंड एट द रेट ऑफ 2025 व्हेन आई स्टार्टेड, आई नो कि मैं वो ट्रांसपेरेंसी पे पेन से लिखा करता था, प्रोजेक्टर पे लग के वो उधर आती थी, आप में से कुछ लोगों ने देखी होंगी वो। तो उसके बाद PPT आ गया, उसके बाद ये प्रोजेक्टर आ गया, प्रोजेक्टर के बाद ये स्मार्ट टीवी आ गया, वो क्लासरूम में आपके तो अब वो लिखने वाले भी आ गए, नहीं आ गए, इसी पे लिखो। तो सो मच टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स आर देयर। देन कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग ऑफ द फैकल्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। छुट्टी भी नहीं देते हैं, मुझे पता है। यस, ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चेंज द माइंडसेट। तो भाई ये ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। वेयर एवर यू गेट ए चांस टू अटेंड सम ट्रेनिंग, प्लीज अटेंड दैट, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। देन ऑटोनॉमी एंड गवर्नेंस, there should be transparency in the appointments, I don't know how this will come। so एक वर्ड अभी मैंने NEP में भी बोला था, विजन एंड मिशन। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, what you understand by the word vision and mission? आप समझते क्या है विजन एंड मिशन से? जब मैं बाबा फरीद में आ रहा था तो एक जगह मैंने यहाँ लिखा देखा, आवर विजन एंड
मिशन। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं पहले तो विजन का मतलब क्या होता है और मिशन का मतलब क्या होता है। एनी पार्टिसिपेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। विजन मतलब लॉन्ग टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल्स, ओके। मिशन मतलब उसको काम करने का प्रोसेस। How it created. यस, सो विजन इज द लॉन्ग टर्म वेयर वी वांट टू बी। हम कहां पहुंचना चाहते हैं 10, 20, 30, 50 साल में, दैट इज विजन। And how that will be achieved, the small steps which we take to achieve that is called as our mission. How many are here from Baba Farid? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Can you tell me what is the vision of Baba Farid? नहीं पढ़ा कभी? कोई बात नहीं। Anyone senior person? What is the vision? What is the vision of CUPV, gentlemen? Tomorrow I'll come to your class. When you go back, read this and try to understand it. And from any other institute can tell what is that this is the vision of our institute. पूरा बताना है सर। हाँ जी, कुछ मेरे को समझा दो सर, कुछ भी। Quality education to make them employable. Knowledge and skill based quality education. Quality education. Global standards. Quality education for the global standards. Sir, this cannot be my mission, vision. ये तो मिशन है मेरा, मैं ये करूंगा तो कुछ होगा। Friends, as long as we don't know what is our vision and mission, then how we are going to do something for our institute? So this is my request. When you go back from here, take a print of your vision and mission of your institute, just paste on the wall behind your chair. एक वो फिल्म में गाना सुना होगा ना, मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है, सुना होगा ना। तो मैं जो भी यहाँ करूँगा, that every single step should be to achieve the vision and mission of my institution. Next slide please. So this is the vision and mission of Baba Farid, which I got from your website. Vision and mission दीवार पे लिखने के लिए नहीं है. That is to understand, that is to discuss, that what to be done. ये सिर्फ NAC के लिए या NIRF के लिए नहीं है. तो आपका सर विजन बड़ा क्लियर है, to gain worldwide recognition. You want Baba Farid to be known worldwide as a distinguished institution promoting academic excellence through impactful collaboration. You people have emphasized the collaborations. With industry partner, you people want something with industry. Your pledge is to mold student into globally aware and socially responsible contributors to the society. Means you want to create, you can say, responsible citizens. That is most important, yes or not? So these are some of the missions which you have given. तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, when you go back, जरूर इसको एक बार पढ़ें और इसको समझें और फिर कोरिलेट करें what you are doing in the institution, how that is contributing to the vision and mission of your institution. Okay, back sir. हाँ, हमारा भी जिंदगी में सबका कुछ ना कुछ विजन एंड मिशन तो होगा ना। जब से पैदा हुए हैं तब से लेके मरने तक कुछ तो होगा। आई रिक्वेस्ट यू टू राइट योर विजन ऑफ योर लाइफ ऑन योर कॉपी। बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज योर विजन इन योर लाइफ? कुछ तो होगा सर। आप क्या कहेंगे सर? मेरा लॉन्ग टर्म विजन अगर देखें तो एक लाइन में बस, एक लाइन में एक ऐसा रिसर्चर बनना जो अपने आप को सो टॉप रिसर्चर यू वांट टू बी। बहुत बढ़िया। तो उसके लिए कुछ ना कुछ मिशन होगा, क्या क्या करना है। दैट आल्सो यू सम टाइम पेन डाउन और अपने वहाँ पे लिख के रखें कमरे में, चाहे ना दिखाएं सबको, और आपके पास होना चाहिए। सर आपके इधर कुछ होगा विजन जिंदगी का? है सर। हाँ बताइए। अरे वो किसी की तरफ मत देखो, लोग ऐसे ही करते हैं, लोगों का क्या है। नहीं बताओगे? कोई बात नहीं, हम किसी को। चलो आप बताएंगे सर। To be recognized whether by doing research or any business, so
so that my parents can feel proud. So you want to be well known person in that. Okay, perfect. मैं सोच रहा था कोई टीचर मुझे कहेगा I want to be vice chancellor. हो सकता है ना सर? क्यों नहीं हो सकता है? कोई बच्चा मुझे कहेगा I want to be, मैं इससे एक्सपेक्ट कर रहा था कि I want to be vice chancellor of CUPB 40 years down the line. No sir, like जब मैं अपने विलेज से बाहर निकला, देन मेरा ये था कि एक गांव में जाके अपने विलेज में जाके सेवा करूं समाज की. स्टूडेंट्स जो है लाइक जो एजुकेशन से वीसी बन के भी कर पाओगे? सर बिल्कुल. लेकिन चलिए इस पे फिर करेंगे डिस्कशन. नेक्स्ट पे आते हैं. ओवर देयर दिस वन वर्ड हैज अपीयर्ड ए नंबर ऑफ टाइम, ब्रांड वैल्यू. सो फ्रेंड्स, आई वांट टू नो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज ब्रांड वैल्यू? किसे कहते हैं ब्रांड वैल्यू? बहुत बार सुनते होंगे ना. मैं कई बार किसी कॉलेज में जाता हूँ, नई सी यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, वीसी एकदम खड़ा होकर कह देता है इन 5 years वी विल बी कंपीटिंग दी IITs. हंसी भी आती है, फिर चुप भी बैठा रहता हूँ. बहुत लोग बोलते हैं ऐसा, है ना. सो व्हाट डू यू थिंक बाय द वर्ड ब्रांड वैल्यू? Which attracts Yes, some unique qualities, some unique characteristics which you make a different from the others, which make you different and your stakeholders identify you very clearly. अगर मैं आपसे पूछूं टॉप इंडिया में कौन सी इंस्टीट्यूशन है, आप मुझे अभी गिना दोगे? IITs, IIMs, IISc गिना दोगे ना? मीन्स सो फ्रेंड्स, गो टू देयर वेबसाइट and please read that how they have developed their brand and what is the advantage of a brand value. Will earn something. Okay, anything else? Resource, whatever resources they need, they will come easy to them. Okay, they will easily get the resources. Anyone else? Investor. I think the one most important is the faith of the parents, students, faculty and other stakeholders. Yes or not? Yes. कुछ ना कुछ तो उनका faith हमारे अंदर रहता है. And brand, poor brand value का no faith, no grants, nothing doing. So always whenever you work for the brand value of your इंस्टीट्यूशन. अगर मैं अभी पूछूं आपसे 3 यूनिवर्सिटियों के नाम टॉप की दुनिया की, मुझे 1 मिनट में वही 3 बताएंगे सारे. आगे पीछे हो सकता है नंबर, पर नंबर होगा सेम, बट यू हैव टू सी हाउ दे हैव बिल्ट देम सेल्फ फॉर द ब्रांड वैल्यू. So we have to work a lot. This next word is very important, stakeholder management. What do you understand by stakeholder? 17 बार ये वर्ड आया है NEP 2020 में, 17 times stakeholder. So what do you think, what is stakeholder? Associated with that, Associated with that particular topic या subject. okay, topic or subject. हाँ जी. Anyone else? Stakeholder सुनते होगे ना, तो बड़ा कॉमन वर्ड है बातचीत का. So what is stakeholder? सर यहाँ पे absorb होना है इस जगह पे, वहाँ उसकी नीड्स के अकॉर्डिंगली बनना, स्टेकहोल्डर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ऐसा ही एक्शन हो. Stakeholder किसे कहते हैं? बस मैं तो इतना सा जानना चाहता हूँ. पार्टिसिपेंट्स. ओके. जितना स्टाफ किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, हाँ. they are the stakeholders. सर ड्राइवर आपके स्टेक होल्डर नहीं है क्या? जो आपकी बसों के ड्राइवर है, आर दे नॉट स्टेक होल्डर? जितना भी बहुत बढ़िया. चलो, बाहर जो चाय की दुकान वाला है, बाहर जो चाय की दुकान वाला, डोंट यू थिंक ही इज आल्सो स्टेक होल्डर? हाँ, है या नहीं है वो? Anyone who can impact you and impacted by you, who influence you or influenced by your activity is called as a stakeholder. जो आपको इन्फ्लुएंस कर सके और जो आपसे इन्फ्लुएंस होता हो, जो आपसे इम्पैक्ट वर्ड इज मोर एप्रोप्रिएट, जो इम्पैक्ट होता है आपके इंस्टीट्यूशन से और जो इम्पैक्ट करता है, दे ऑल आर कॉल्ड एज स्टेक होल्डर्स. आई विल राइट, यू प्लीज राइट द 5 स्टेक होल्डर्स. ईच पार्टिसिपेंट राइट 5 स्टेक होल्डर ऑफ योर इंस्टीट्यूशन. 5 स्टेक होल्डर के नाम ऑफ योर इंस्टीट्यूशन. कौन कौन हो सकते हैं 5 स्टेक होल्डर आपकी नजर में?
लिखे सर? हाँ जी सर। स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया। फैकल्टी, पेरेंट्स, सोसाइटी, Non-teaching staff. नॉन टीचिंग स्टाफ। इनसे अलग कुछ लिखा किसी ने? Bouncers, yes, they are to maintain the discipline. Perfect. Canteen, yes, that boy who is washing the utensil over there, he is also a stakeholder. Alumni is a very important stakeholder, very important stakeholder. Industries, placement agencies, nearby people. Don't you think media is a stakeholder? Yes. In single day he can take you to the sky, and in single day he can shatter you on the earth. Don't you think local ministers? Don't you think government? Yes. And nobody has said me your management. Don't you think your management is a very powerful stakeholder? Yes or not? Your principal, your director. So when you will list, you will find there are more than 100 stakeholders. Nowadays people have started talking about non-human stakeholders. अभी तक तो हम सारी बात कर रहा हूं मैं ह्यूमन स्टेक होल्डर्स की, वट अबाउट नॉन ह्यूमन स्टेक होल्डर्स? डोंट यू थिंक दिस सॉइल इज आल्सो स्टेक होल्डर? आप इसे पोल्यूट करके छोड़ दो। डोंट यू थिंक द बर्ड्स विच आर लिविंग हियर, दे आर आल्सो ए stakeholder? The trees, they are also a stakeholder. So I am talking non-human stakeholder. ज्यादातर emphasis हमारा रहता है सिर्फ human stakeholders पर, but there are a number of non-human stakeholders. I'll give you some instructions for 10 seconds. Nobody will ask me in between, and what I say you have to do it. आप भी करो ना, कागज ले लो किसी से एक एक, जो मैं कहूं वो करना है, बीच में मुझसे कोई कुछ नहीं पूछेगा। ओके, स्टार्ट करें। फोल्ड दिस पेपर, अगेन फोल्ड दिस पेपर। नाउ रिमूव द राइट कॉर्नर ऑफ दिस पेपर। Okay, done. Again fold this paper. Now remove the left corner of this paper. That's all. सभी अपना अपना खोलें पेज। ऐसे करें एक बार। I can see, what do you see? आप instructions were same and results are totally different. मेरे पास 30 रिजल्ट हैं इस क्लासरूम में। This I want to relate with the stakeholders. ये ऐसा आया क्यों? Why this result I got 30 different results? Instructions were same. Why I got 30 different results? Alignment, okay. हाँ जी, mindset, okay. My approach is right. My approach is right, okay. And what do you think? Why we got 30 results, bhai? Instruction was same. Instruction was ambiguous. Instructions were not clear. Yes. Listening, sir. हाँ? Listening proper नहीं, पता चला नहीं। मेरे तो काफी लाउड बोला था मैंने। ओके फ्रेंड्स, इसका शायद एक तो कारण ये हो सकता है इंस्ट्रक्शंस वर नॉट प्रॉपर। मैंने सबसे पहली लाइन क्या बोली थी? नहीं, उसके बाद जब शुरू किया मैंने कब कहा था इसको इक्वल टू में करना? एवरीबॉडी हैज डन इट इक्वल। मैंने तो कहा ही नहीं था फोल्ड इट इनटू इक्वल टू, मैंने कहा ही नहीं। मैंने तो कहा था फोल्ड दिस पेपर, बस इतना सा बोला था। कोई यूं भी कर सकता था, परंतु मैं देख रहा था सबने ऐसे ही किया। इट मीन्स ऑलरेडी देयर इज समथिंग दैट इज इन आवर माइंड, already there is something in my mind and we take decision according to that. So friends, whenever you are talking to your stakeholders, when you are listening to your stakeholders, listen them very carefully, listen them properly.
Understanding my point? Otherwise we will make decisions like this based upon something that is already in our, वो मेरे पास आए कोई समस्या लेके, मेरे दिमाग में पहले है वो बंदा ठीक नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? गलती करूंगा ना डिसीजन। बहुत बार बच्चे हमारे पास आते हैं विच आर ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर, सो वी हैव टू लिसन देम केयरफुली एंड वी शुड नॉट मेक एनी डिसीजन विदाउट listening them. So this is what I want you to convey. Listen the, otherwise result will be like this, and this result will be very disastrous for any institution. खतरे की घंटी है ना ये तो. Now next question arise, how we bring this to the single decision. एक जैसा रिजल्ट आए कैसे होगा ये, कैसे करें इसको? हाँ जी, this can be done based upon the group discussion. Decision should not be individualistic, decision should be taken by group, by consensus. Understanding my point? Okay, I'm coming to the two topics we have discussed today in detail, NEP 2020 and SDG. Now I want to connect these two, that why NEP 2020? Because NEP 2020 is a roadmap to achieve the SDG 4. ये बात मानेंगे नहीं मानेंगे? NEP 20 is to achieve the SDG 4 and SDG 4 talk about inclusivity, सभी का विकास, equitable सभी के लिए, एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन. आई थिंक सेम अगर आप पढ़ेंगे दूसरी या तीसरी लाइन NEP की, इंक्लूसिविटी, इक्विटी, यही वर्ड उसके अंदर लिखे हैं. देन no doubt this is a very comprehensive education system that has been proposed in the last 35 years. Let us wait for the outcome. Yes, and we want to reshape ये जो education system आया है, we want to reshape the education system India since from childhood to हायर एजुकेशन. इसमें 3 साल के बच्चे की बात भी है, इसमें PhD की बात भी है, इसमें मेरू की बात भी है, इसमें सबकी बात है इसके अंदर. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. नाउअडेज पीपल टॉक ए लॉट अबाउट ब्लूम्स टैक्सोनॉमी. आपके यहाँ भी बहुत सारी वर्कशॉप हुई होंगी, बहुत कुछ हुआ होगा. अब प्रॉब्लम इसके साथ क्या है? हाईली एक्सपर्ट पीपल टॉक विद वी पीपल दोज डोंट नो एनीथिंग ऑफ दी ब्लूम, और हम उसके अंदर अपना सारे का सारा इंटरेस्ट लूज कर देते हैं. पता नहीं क्या है, कुछ नहीं है. ब्लूम एक व्यक्ति का नाम है, उसने कहा है कि ये 6 स्टेप आपकी एजुकेशन में होने चाहिए. सबसे पहला, सबसे नीचे कौन सा है? रिमेम्बरिंग, याद कुछ रह जाए. दूसरा अंडरस्टैंडिंग, तीसरा अप्लाइंग, चौथा एनालाइजिंग, पांचवा evaluate, और 6th create. Can after reading my course my student is able to create something? अभी तक आप अपने जितने क्वेश्चन पेपर देखेंगे किस लेवल तक जाते हैं इसमें से? आपकी यूनिवर्सिटी में शुरू कर दिया, आपको पता होगा. BL और CL लिख के साथ में आ रहा है. हमने सर ये लागू कर दिया, हर क्वेश्चन के साथ लिखा जाएगा कौन सा 1 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, ताकि बच्चे को ये पता लग जाए मुझे इसका आंसर किस लेवल पे करना है. A very detailed study has been done by your AICT National Institute of स्कूल वाली कौन सी है? NCERT. ज्यादातर सिर्फ 2 लेवल तक हमारे क्वेश्चन पेपर खत्म हो जाते हैं. रोट लर्निंग, डिफाइन दिस, गिव ए डिटेल्ड नोट ऑन दिस, एक्सप्लेन द फॉलोइंग. यहां पे ज्यादातर हो जाते हैं. थोड़े बहुत क्वेश्चन डिफरेंशिएट दिस, वो अंडरस्टैंडिंग पे चले जाते हैं. इससे ऊपर मुझे बताओ, मैं इंजीनियरिंग के पेपर देखता हूं, उसी में न्यूमेरिकल नहीं होते हैं. मैंने एक पेपर पढ़ाया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, आपने पढ़ाया इधर. आप उसमें क्वेश्चन देते हैं, मेक ए प्लान फॉर टू मेक दिस कैंपस जीरो वेस्ट कैंपस. भाई ये तो मेरे स्टूडेंट को लर्न होना चाहिए या नहीं होना चाहिए आफ्टर रीडिंग माई होल पेपर? या फिर मेरी पेडागोजी में गड़बड़ है, कहीं जो मैं पढ़ा रहा हूं उसमें मेरी गड़बड़ है? तो अब इस क्वेश्चन का कोई आंसर भी नहीं है. आंसर विल डिपेंड अपॉन द स्टूडेंट टू स्टूडेंट, बट आई वांट टू चेक देयर क्रिएटिविटी वेदर माय स्टूडेंट इज एबल टू क्रिएट समथिंग और नॉट. तो सर हमें अपनी पेडागोजी चेंज करनी होगी. अभी हमारी पेडागोजी क्या है? थिंग्स आर गोइंग फ्रॉम द टीचर्स पेपर टू द स्टूडेंट्स पेपर. ब्रेन ऑफ बोथ इज मिसिंग.
दे आर नॉट एबल टू क्रिएट एनीथिंग। नेक्स्ट एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, लास्ट में जाओ, ये तो हाँ ये दिखाओ एक बार, ये बैक, ये सर कुछ लेवल हैं कि जब आप इस तरह के क्वेश्चन डिफाइन करते हैं ना, डिफाइन दिस, ड्राई डायग्राम, नेम दिस, आउटलाइन दिस, ये लेवल 1 रट्टे के सवाल हैं सारे। सर ये गूगल पे पढ़ा है, कहीं भी डाल लेना, BL वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स। जब आप कहते हो दिस, हाई लेवल का ये है कि ड्रॉ ए फार्मूला, राइट सम कोड और समथिंग लाइक दैट। मैं एक IIT का पेपर दिखाना चाहता हूं आपको, उसके साथ खत्म करूंगा बात, लास्ट में चले। हाँ, ये क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर आप पढ़िएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। बच्चों को टीचर ने कहा 180 मिनट का है, 70 नंबर का है। प्रिपेयर द क्वेश्चंस ऑफ 60 मार्क्स, prepare the questions of 60 marks from the lecture material provided to you in the entire semester। पूरे सेमेस्टर में जो हमने आपको दिया, आप उसका एक क्वेश्चन पेपर बनाएं। इट शुड रिफ्लेक्ट योर अंडरस्टैंडिंग, वो नहीं चलेगा, name this or this should reflect your understanding about the course and also must be answered in 2 hours। क्वेश्चन पेपर भी ऐसा बनाना है जिसका उत्तर आप 2 घंटे में दे सके। अवॉइड डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स, इट मे रिड्यूस योर स्कोर इफ सिमिलर आर फाउंड। 40 नंबर का तो ये क्वेश्चन है, 30 का ये है। आंसर द क्वेश्चंस यू प्रिपेयर्ड। सो दिस इज द इनोवेशन विच वी रिक्वायर, कि तुम खुद ही बना लो। अभी हमने अपने एक क्वेश्चन मैंने एक दिया कि मेक ए न्यूमेरिकल from what we have taught you in the class, खुद ही बना लो numerical and give the answer of that। My student must learn how to draft a question। Once my student is drafting a question, it means he is understanding a problem and he is giving it a shape where it can be answered qualitatively, numerically। So okay friends, thank you very much and have a nice evening।